Hello students, today we will discuss how to solve the pair of linear equation by algebraic method. In previous lecture we solved this pair of linear equation by graphical method and this is algebraic method, and by solving this pair by algebraic method there are three ways of solving it. First is substitution method. Second is elimination method, and third is cross multiplication method. The three methods, algebraic methods, are substitution method, elimination method, and cross multiplication method. And in today's lecture, we will discuss how to solve this pair by substitution method. Okay, let's discuss it with the example. And this substitution method. This method is given in exercise 3.3. We will be starting exercise 3.3. Let's start from the first question, first part. It is x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. The method we will be using substitution method. कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? Substitution method. Substitution as it is, we are getting it from the name. Substitution means substitute करनी है value, हमें value put करनी है. तो there are two equations. अब इन दोनों में से out of these two we will take the value of x or y from any of these equation and we will put that value in other equation. इन दोनों में से किसी भी एक में से x या y की वैल्यू लेके हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको फिर सोल्व कर लेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा. और दिस मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सबसे पहले चलो हम फर्स्ट इक्वेशन से ही x या y की वैल्यू ले लेते हैं. चलो x की वैल्यू ले लेते हैं. हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अब y को उधर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस y, और इसको आप लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 3. नाउ फ्रॉम वी हैव टेकन दिस वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अगर इक्वेशन फर्स्ट पे से हमने ये वैल्यू ली है तो हम इसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? सेकंड इक्वेशन. किसमें? सेकंड इक्वेशन. अगर हम x या y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में से लेते तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते. ओके, इसमें लिखेंगे substituting x is equal to 14 minus y in equation. किसमें? फर्स्ट में से वैल्यू लिए तो हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, या इसकी जगह लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ. ठीक है, पुटिंग x is equal to this one in equation सेकंड. अब x की जगह पे ये वैल्यू पुट करो 14 minus y. x की जगह पे 14 minus y और ये minus y is equal to 4. minus y और minus y कितना हो जाएगा? minus 2y. और 14 उधर जाके कितना हो जाएगा? 4 minus 14. अब minus 2y is equal to 4 minus 14 कितना होगा? minus 10. minus से minus cancel. y is equal to take 2 on the other side. This is 10 by 2. This is equal to 5. y is equal to 5. अब इस y की वैल्यू को y is equal to 5 को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वैसे तो फर्स्ट और सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये है ये फर्स्ट का ही एक टाइप है. फर्स्ट से ही हमने ट्रांसफॉर्म किया, और क्योंकि y की वैल्यू 5, सीधा हम यहाँ पे y की जगह 5 पुट कर देंगे, we will get the value of x. तो क्या करें? substituting y is equal to 5 in equation third. अब थर्ड में पुट करो भाई. x is equal to 14 minus y कितना? 5. कितना आ गया भाई? 14 minus 5. This is equal to 9. तो वैल्यूज क्या आ गई? x is equal to 9 and y is equal to 5. This is our answer. Is it clear? Now let's take another example, or we will discuss the part second. Part second of this
first question, and the question is s minus t is equal to 3, s by 3 plus में t by 2 is equal to 6, is equal to 6. We have to get the solve this pair and get the value of x and s and t. अब इसमें देखिए सबसे ये इक्वेशन है भाई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब हम इस इक्वेशन पे फ्रैक्शंस को रिमूव कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अब इक्वेशन के आगे इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इंप्लाइज दैट का सिंबल. दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट. तो क्या करें, इसको रिमूव करें फ्रैक्शंस को. 3 2 और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, 3 2 और 1. तो क्या करें, 3 2 और 1 का एलसीएम कितना है 6. इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 कितना आ जाएगा 2s, प्लस में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 3t, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को राइट हैंड साइड में भी 6 6 जा 36. लेट दिस इज इक्वेशन सेकंड. क्लियर. अब हम इन दोनों इक्वेशंस में से s या t की वैल्यू हम ले लेते हैं, और जिसमें से भी वैल्यू लेंगे उससे दूसरी इक्वेशन में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इसमें से हम s की वैल्यू ले लेते हैं, लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. t को उधर ले जाइए, s इज इक्वल टू t उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस में t, और इसको क्या मान लें थर्ड इक्वेशन. अब इस s की वैल्यू को, इस s की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो क्या लिखें, substituting s is equal to 3 plus t in equation second. अब s की जगह पे पुट करो तो 2 into s कितना है 3 प्लस में t, 2 into 3 प्लस में t प्लस में 3t that is equal to 36. अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस में 3t that is equal to 36. 2t plus 3t कितना होगा 5t. Take 6 on the other side, 36 minus 6. 36 minus 6 कितना होगा 30. Take 5 on the other side, t is equal to by 5 6 that is equal to 6. t की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6. Now substitute t is equal to 6 in equation number, इसमें पुट कर लेते हैं थर्ड. वैसे तो फर्स्ट सेकंड में किसी में पुट करो, लेकिन इसमें t ऑलरेडी इस साइड में वैल्यू पुट करनी है. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ s. substituting t is equal to 6 in equation number थर्ड में सब्स्टिट्यूट कीजिए. थर्ड इज s is equal to 3 प्लस में t is 6 कितना होगा 9. तो क्या आ गया सॉल्यूशन, s is equal to 9 and t is equal to 6. This is our solution. Is it clear? Let's come to the fourth part. This is 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. अब इसमें सबसे पहले हमें कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमें थोड़ा सा इजी करने के लिए इन इक्वेशंस को हम इनके डेसिमल्स को रिमूव कर लेते हैं. तो क्या करें भाई, ये 0.2 है, 0.3 है, 1.3 है, और ये 0.4 0.5 और 2.3. अब इनको क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये डेसिमल्स रिमूव हो जाएंगे. सेम वे इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल्स रिमूव हो जाएंगे. तो दिस इंप्लाइज दैट, इक्वेशन के आगे इक्वेशन लिख रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.2 into 10 2x, और ये प्लस में 3y दैट इज इक्वल टू 30. इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान. इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 into 10 कितना आ जाएगा 4x प्लस में 5y is equal to 23. Let this is set. अब इन दोनों इक्वेशंस में से, अब ये अपने पास में दो इक्वेशन आ गई है. इन दोनों इक्वेशंस में से, दोनों में से किसी में से भी x या y की वैल्यू लेके हम दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो कैसे करेंगे भाई, इसमें से हम वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कीजिए x की, और इसमें देखिए इनमें भी x और y के कोएफिशिएंट अदर देन 1 है. अगर कोएफिशिएंट किसी में 1 हो तो हम उसी की वैल्यू लेंगे.
ताकि हमारे को जो रिजल्ट है वो फ्रैक्शंस में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, हम उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और हमारे लिए बहुत इजी रहे वो सॉल्व करना। ठीक है ना, इसमें कुछ भी आप दोनों में से किसी में से भी x या y की वैल्यू लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू ले लो भाई, दिस इज 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और टेक 2 ऑन द अदर साइड, डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2 और इसको आप इक्वेशन थर्ड मानिए। अब ये वैल्यू किस में से ली है आपने? इक्वेशन फर्स्ट में से। किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को? इक्वेशन सेकंड में लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू दिस वन इन इक्वेशन सेकंड। Substituting x is equal to 13 minus 3y by 2 in equation second. अब पुट कीजिए x की जगह पे 4 into 13 minus 3y by 2 प्लस में 5y is equal to 23. Now 2 से 2 1 जा 2 2 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 13 26 माइनस 2 इंटू 3y माइनस 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। अब माइनस का 6y प्लस का 5y कितना आ जाएगा? माइनस y। दिस इज इक्वल टू 26, उधर जाके क्या हो जाएगा? 23 माइनस 26 कितना हो गया? माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दें, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, कितना? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y कितना? 3 बाय 2। 13 minus 3 into 3 9 by 2 that is equal to 13 minus 9 4 by 2 2 से 2 this is equal to 2। तो क्या आ गया भाई? x is equal to 2 and y is equal to 3। this is our answer। is it clear? कोई डाउट इसमें? now let's proceed to the fifth part of it। अब इसमें देखा √2x plus √3y is equal to 0, √3x minus √8y this is equal to 0। We have to solve this pair and get the value of x and y। अब इसमें let this is equation first, this is equation second। अब out of these we can get the value of x and y। इसमें से हम x की वैल्यू ले लेते हैं, ये √3y इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 0 माइनस तो कितना हो जाएगा? माइनस ना from equation first तो कितना होगा ये? √2x is equal to minus √3y और हमें वैल्यू x की लेनी है तो इसको कर लेते हैं, तो x is equal to minus √3 by √2y। let this is equation थर्ड। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन, ये किस में से ली हमने वैल्यू? फर्स्ट में से। किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? सेकंड। तो substituting √x is equal to minus √3 by √2y in equation second। तो कितना होगा? √3 into minus √3 by √2y minus √8y this is equal to 0। ठीक है, अब देखिए इसमें √3 into minus √3 कितना हो जाएगा? √3 into √3 कितना हो जाएगा? √3 into √3 कितना हो जाएगा भाई? 3, तो माइनस 3 by √2y और ये कितना? माइनस √8y दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें y कॉमन ले लो भाई, क्या कॉमन ले ले? या यूं समझ लो कि इसको √2 को रिमूव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें? माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस √2 से। माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस प्लस, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3y और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √8 इंटू √2 दिस इज इक्वल टू √16 और √16 कितना होता है 4, तो कितना आ जाएगा प्लस का 4y दिस इज इक्वल टू 0। 3y प्लस 4y कितना होगा 7y दिस इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 7 उधर जाके डिवाइड 0 बाय 7 कितना होगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0। अब y की वैल्यू 0 को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट की बजाय हम सब्स्टिट्यूटिंग की बजाय हम पुटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, या टेकिंग भी लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड में पुट कीजिए भाई, x इज इक्वल टू माइनस √3 बाय √2 इंटू y कितना है 0, 0 इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब y भी 0 और x भी 0, तो क्या आ गया भाई x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, दिस इज आवर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। we have to get the value of x and y, after that hence find the value of m, after that we have to get the value of m for which y is equal to mx plus 3, m की वैल्यू चाहिए हमें, इससे x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उस x और y की वैल्यू को इसमें पुट करके हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। Is it clear? तो first of all we will solve these two equations. This is 2x plus 3y is equal to 11 or 2x minus 4y is equal to minus 24. Let this is first and this is second. Clear? अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से हमें x और y की वैल्यू ले लेंगे। अब इसी में से देख लेते हैं from equation first, अब इसमें से कितना हो गया 2x is equal to 11 minus 3y, 3y इधर जाके माइनस हो, अब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x is equal to 11 minus 3y by 2. Let this is equation number second. अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड, अब इस वैल्यू को x की वैल्यू को हम किस में सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या लिखें substituting x is equal to 11 minus 3y by 2 in equation number सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई सेकंड इक्वेशन में, इसमें x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या आ गया 2 into this one 2 into 11 minus 3y by 2 और ये minus 4y is equal to minus 24। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, अब ये क्या बच गया 11 minus 3y और ये minus 4y is equal to minus 24. Take 11 on the other side, minus 3y minus 4y, it is minus 7y minus 24 और minus 11, तो कितना हो गया ये minus 7y is equal to minus 25, sorry minus 30 minus 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भाई, तो y is equal to 35 by 7, 7 1 जा 7 5 जा, this is equal to 5, y की वैल्यू क्या आ गई भाई 5। इस y is equal to 5 को किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में, तो लिखो putting y is equal to 5 in इक्वेशन नंबर थर्ड, तो क्या है भाई x is equal to 11 minus 3 into y कितना है 5 by 2, this is equal to 11 minus 5 3 are 15, तो minus 15 by 2 कितना हो गया ये minus 4 by 2, 2 1 जा 2 2 जा कितना आ गया भाई minus 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई भाई, हमारे पास y is equal to 5 और x is equal to minus 2, ये दो वैल्यूज आ गई x और y की। लेकिन हमें करना क्या है, we have to get the value of m if this equation is there, we will put the value of x and y in this one, तो क्या लिखे आप y is equal to mx plus में 3, now put the value of x and y is 5, तो 5 is equal to m into x कितना है minus 2 plus में 3, हमें वैल्यू निकालनी है
तो ये 5 इज इक्वल टू -2m प्लस में 3। अब -2m को इधर ले आइए, -2m इधर आके क्या हो जाएगा 2m, और ये 5 इधर से आके कितना हो जाएगा -5। तो कितना हो गया 3 - 5 कितना हो गया -2। कितना हो गया ये -2। तो m इज इक्वल टू ये -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया -1। तो m इज इक्वल टू -1। दिस इज आवर आंसर। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया हमने, y और x की वैल्यू आ गई, फिर हमने इस इक्वेशन में y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अल्टीमेटली हमें m की वैल्यू निकालनी थी, इनको सॉल्व किया तो वी गेट m इज इक्वल टू -1। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और एक नंबर जो है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, अब हमें दो नंबर्स एंड वी हैव टू फाइंड दोस नंबर्स। तो लेट्स, वन नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज y। तो इसमें सॉल्यूशन, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हम x को लेट द ग्रेटर नंबर भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, लेट वन नंबर इज x, अनदर नंबर इज y। तो और लेट x इज ग्रेटर देन y, हम ये भी मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन y। तो पहला क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 26। तो x is greater means x minus y is equal to 26. Then according to state question या according to statement क्या कहेंगे, x minus y is equal to 26। दोनों का डिफरेंस 26 है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया 26 आ गया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर, एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है, तो बिगर नंबर इज x, तो x इज इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करें। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर सेकंड में ऑलरेडी x इज इक्वल टू 3y है, तो हम सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू 3y इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 3y in equation number first। तो x की जगह पे 3y minus y is equal to 26। 3y minus y कितना हो गया 2y is equal to 26। तो y is equal to 26 by, तो कितना आ गया 2 से 13। y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब y की वैल्यू 13 आ गई, इस 13 को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर, किसमें, इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें भी, लेकिन इसमें इजी सीधा हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। तो y की जगह पे 13 इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3 into y, y इज 13। तो कितना आ गया x, कितना आ गया 3 into 13 कितना आ गया 39। x इज इक्वल टू 39। तो अपने पास क्या आ गया, नंबर्स आर, तो नंबर्स कौन से हो गए, नंबर्स आर 39 एंड 30। 39 and 30। The taxi charges in a city consist of charge together with the charge for distance covered। ठीक है, with the taxi charges consist of charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 kilometer। For a distance of 10 kilometer, the charge paid is, for 10 kilometer the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155। ठीक है भाई,
और उसके बाद ये बोला है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दोनों ये फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर द जर्नी कवर्ड मींस फिक्स्ड चार्ज एंड द डिस्टेंस पर किलोमीटर। और उसके बाद ये पूछा है, सबसे पहले तो ये निकालना है कि कितना फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा और पर किलोमीटर का कितना चार्ज होगा। आफ्टर दैट how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? If somebody has to travel 25 kilometer, how much he has to pay? कितना पे करना पड़ेगा उसको। सबसे पहले क्या है, तो भाई हम टैक्सी यूज कर रहे हैं, वी हैव टू पे फिक्स चार्ज, और उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर कितना, जितने भी किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे उतने उसके हिसाब से हमें चार्ज पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज एक तरह से रजिस्ट्रेशन चार्ज आप मान लीजिए, जो फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना है चाहे हम कितना ही डिस्टेंस कवर करें। तो लेट द फिक्स चार्ज इज सॉल्यूशन, लेट द फिक्स चार्ज को क्या मानते हैं, रुपीस एक्स। द फिक्स चार्ज इज रुपीस एक्स, इतना तो पे करना ही है। उसके बाद हर किलोमीटर का हम चार्ज मान लेते हैं वाई। let the charge paid per किलोमीटर, पर किलोमीटर का कितना मान लेते हैं हम, रुपीस वाई पर किलो, हर किलोमीटर का रुपीस वाई हमें पे करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू द फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीस 100। कोई 10 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 105। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इस स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाते हैं। 10 किलोमीटर जाना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर जाना है तो कितना चार्ज पे किया, 105। कैसे हुआ 105, तो भाई देखिए फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, एक्स रुपीस तो देने ही देने हैं। फिर उसके बाद पर किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ेगा, 10 वाई। फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का तो 10 वाई, और दोनों ये मिला के इट बिकम्स 105। कितना हो गया, 105। ठीक है। सेकंड में क्या बोला है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीस 155। तो कोई 15 किलोमीटर जाता है तो 155 पे करता है। 15 किलोमीटर मीन्स कितना, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। उसके बाद 15 किलोमीटर जाता है तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, 15 वाई, 1 किलोमीटर का वाई तो 15 का 15 वाई, और ये टोटल मिला के कितना पे किया उसने, 155। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आउट ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फ्रॉम एनी ऑफ दिस इक्वेशन। सो हम फर्स्ट में से ही एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई की जो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर हमें निकालना है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। तो फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 105 माइनस ये 10 वाई उधर जाके माइनस 10 वाई। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई, और इसके इक्वेशन को हम थर्ड मान लेते हैं। अब किसमें से वैल्यू ली हमने, फर्स्ट इक्वेशन में, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड में। तो पुटिंग x इज इक्वल टू दिस वन इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कीजिए भाई, x की जगह पे कितना, 105 माइनस 10 वाई और प्लस का 15y इज इक्वल टू 155। अब माइनस का 10y प्लस का 15y तो कितना आ गया, 5y। दिस इज इक्वल टू टेक 105 ऑन द अदर साइड, कितना आ गया, 155 मींस माइनस 105 तो कितना हो गया ये 50, और ये 5y है तो y इज इक्वल टू 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया 10, तो y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। इस वैल्यू को हम किस में पुट कर लें, थर्ड इक्वेशन में पुट कर लें। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। वैसे फर्स्ट और सेकंड में किसी में पुट कर देंगे तो भी वैल्यू सेम आनी है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस
10y और y कितना है 10, 10 इंटू 10y था 10 इंटू 10 कितना हो गया ये 105 माइनस 100 कितना हो गया भाई x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 कितना आ गया 5। तो सबसे पहले मैं क्या बताना था फिक्स चार्ज कितना है x रुपीस और चार्ज पर किलोमीटर y, तो हमें ये लिखना है ठीक है। तो क्या आ गया फिक्स चार्ज फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर कितना है भाई रुपीस y दैट इज इक्वल टू 10 रुपीस पर किलोमीटर ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और पूछ रखा है एक हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, किसी को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितना पे करना पड़ेगा, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर क्या निकालना हमें चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए भाई x तो फिक्स तो पे करना ही करना है, फिर उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है तो 25 किलोमीटर पर किलोमीटर कितना होता है y, तो कितना होगा 25y ठीक है। तो ये चार्ज पे करना पड़ेगा, फिक्स पे किया और हर किलोमीटर का y है तो 25y होगा, तो इसमें x और y की वैल्यू पुट करना, x कितना है 5 प्लस में 25 इंटू y कितना है भाई 10 कितना हो गया 5 प्लस में 250 दैट इज इक्वल टू 255 तो कितना हो गया भाई कोई 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा चार्ज 255 किलोमीटर। Now let's come to the fifth part. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If we add 2 to both numerator and denominator, the fraction will result into 9/11. And if 3 is added to both numerator and denominator, दोनों में अगर 3 ऐड कर देते हैं तो fraction becomes 5/6. Then we have to find the fraction. तो हम fraction को मान लेते हैं, let fraction is equal to x by y. हमने fraction मान लिया x and y. तो पहला केस क्या है, if 2 is added to both numerator and denominator, दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो fraction क्या बन जाता है, fraction becomes 9/11. देखिए भाई, तो according to question you can say x और y. अब x में भी 2 ऐड कर दिया और y में भी 2 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/11. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम इक्वेशन बना लेंगे. अब 11 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उधर 9 के साथ में, 11 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू x कितना हो गया 11x प्लस 11 इंटू 2 22 और y प्लस 2 उधर 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू y कितना हो गया 9y प्लस 9 इंटू 2 कितना हो गया 18. तो ब्रिंग 9y ऑन दिस साइड, टेक 22 ऑन द अदर साइड, तो कितना हो गया 11x माइनस 9y और इसको उधर ले जाइए 18 माइनस 22. 11x minus 9y is equal to minus 4. Let this is equation first. Is it clear? Second है if 3 is added to both numerator and denominator, तो अगर numerator और denominator में दोनों में 3 ऐड कर दें तो जो fraction है that becomes 5/11. अब इसमें देखिए भाई x by y, दोनों में हम 3 ऐड कर देते हैं, दोनों में हमने क्या ऐड कर दिया, we added 3 to both numerator and denominator. Then this fraction becomes, क्या आ गया fraction 5/6. इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और हम इसकी x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी. 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 3 को इधर 5 के साथ में, 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू y प्लस 3 इधर 5 के साथ में 5 इंटू y 5y प्लस में 5 3 जा 15, तो 5y को इधर ले आइए, 6x minus 5y is equal to 15 और take 18 on the other side minus 18. कितना हो गया भाई ये 6x minus 5y is equal to minus 3.
दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर सेकंड। तो वही अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, दोनों में से किसी में से भी हम इनको सोल्व करना, दोनों में से किसी में से भी x या y की वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम जैसा कि हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से इसको आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6th पार्ट, 5 years hence, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो हमें दोनों की, जैकब की और उसके बेटे की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशन क्या है पहले केस में, 5 years hence यानी कि अब से 5 साल बाद, आगे 5 साल बाद। तो अब सबसे पहले 5 साल बाद वाली कंडीशन है, क्या है, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना होगी, कब, अब से 5 साल बाद। तो अभी हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो जो हमें व्हाटएवर वी हैव टू फाइंड आउट वी विल अज्यूम दैट। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज इज कितना, x years। जैकब की प्रेजेंट एज x years मान ली और उसके बेटे की क्या मान ले, y। लेट जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज कितना, y years। उसके बेटे की एज हमने क्या मान ली, y years। तो अब से 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, x + 5, उसके बेटे की एज कितनी होगी, y + 5, दोनों की एज बढ़ेगी कितना, 5 उनमें प्लस हो जाएगा। और प्लस होने के बाद में क्या कंडीशन दिया, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके बेटे से कितने गुना होगी, 5 साल बाद जो भी एज होनी है उसका क्या होगी, 3 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब फर्स्ट में देखिए x इज इक्वल टू हम y लिख लेते हैं, केस बनाते हैं हम 5 साल बाद। तो x, जैकब की एज कितनी होगी, x + 5, जैकब सन एज विल बी y + 5, दोनों की एज ये होगी 5 साल के बाद। और उसमें क्या है, जो ये जैकब की एज है इट विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके बेटे से क्या होगी, 3 टाइम्स ज्यादा होगी। तो क्या करेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई जैकब्स सन एज बाय 3, तो ये एज उसके बेटे की एज को 3 गुना कर दिया तो उसके फादर की एज के इक्वल आ जाएगी जैकब की एज। तो इससे एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, x + 5 is equal to 3y + 5 3s are 15. Bring 3y on this side. So x minus 3y is equal to, take 5 on the other side. 15 minus 5. तो क्या आ गया, x minus 3y is equal to 10. This is equation number first. Second case, 5 years ago, अब से 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब अब से 5 साल पहले जो एज उनकी एज थी, क्या कंपैरिजन था, जैकब की जो एज थी इट वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो अब इसको लिख लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। अब से 5 साल पहले जैकब की एज कितनी थी, x - 5, उसके बेटे की एज कितनी थी, 5 years ago, y - 5। और क्या रिलेशन था, तो जो जैकब की एज थी उसके बेटे से कितने टाइम्स ज्यादा थी, 7 टाइम्स। तो अगर उसके जैकब के बेटे की एज को 7 टाइम्स कर दे तो इट बिकम्स जैकब्स एज। क्लियर, इसको सोल्व करके एक इक्वेशन बना, कितना, x - 5 is equal to 7y - 35, bring 7y on this side, तो x - 7y, take -5 on the other side, -35 प्लस का 5, कितना आ गया, x - 7y is equal to -30. This is equation second. ये दो इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू ले लेंगे। तो इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू ले लो, इसमें पुट कर दो, लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3y इधर आ गया, तो कितना, 10 प्लस में 3y, और इसको हम क्या मान लें, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। -3y इधर जाके क्या होगा, 10 + 3y, x is equal to 10 + 3y. Substitute this value in equation 7. Putting x is equal to 10 plus में 3y in equation number
सेकंड, क्योंकि ये वैल्यू किससे ली है, इक्वेशन फर्स्ट से, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड में। तो x की जगह पे पुट करेंगे कितना, 10 प्लस में 3y, तो x कितना 10 प्लस में 3y और ये माइनस का 7y, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 30। सिंप्लीफाई कितना, 10 को उधर ले जाइए, 3y माइनस 7y कितना आ गया, माइनस 4y, 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 30 और ये 10 उधर जाके माइनस 10 कितना होगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस तो y इज इक्वल टू 40 और 4 उधर जाके डिवाइड कितना होगा 10, y की वैल्यू क्या आ गई भाई, y इज इक्वल टू 10। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या लिखें, पुट इन y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, सीधी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस में 3 इंटू 10, तो कितना 10 प्लस में 3 इंटू 10 कितना 30, दैट इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू 40, यानी कि x क्या था, जैकब्स प्रेजेंट एज 40 और his son's present age is none। लिखना पड़ेगा हमें प्रॉपर, ठीक है, तो क्या लिखें, जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर दैट इज इक्वल टू 40 years, जैकब्स son's present age is y years, y कितना है 10 years, ठीक है भाई। अब ये अच्छे से समझ में आ गया। This was the last question of this exercise, and here this substitution method, this method is over. It's okay. Good day.